Assalamualaikum students. Today we are going to study computer of class 6. So let's get started. So here it is its contents list. Unit number 1, working of the computer, on page number 3. So let's begin. Unit number 1, working of the computer. कंप्यूटर का काम करने का तरीका. Number 1, computer. A computer is a device. It can store instructions provided to it. A computer responds to the new instructions that is given. A computer can also store data. It can fix and get big data or information that has been restored in the memory of the computer. A computer can also perform different operations on the data stored in it. अब जो कंप्यूटर है वो एक ऐसी डिवाइस है जो उसमें हम जिस चीज़ को इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करें वो उसे अपने अंदर रख भी सकता है और उस पर और दूसरे हम जो उसको इंस्ट्रक्शंस थे उस पर रिस्पॉन्ड भी कर सकता है. हमारा जो है कंप्यूटर वो डेटा को अपने अंदर भी रख सकता है और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें और भी रख सकते हैं और वो अपने डेटा पर बहुत सारे काम भी कर सकता है. Number 1, data. Data is any type of information that can be put into a computer, stored into it. A computer can perform different processes on data. All documents, images, recordings, videos, etc. that can be used on a computer are examples of data. अब जो हमारा डेटा होता है वो कोई भी ऐसी चीज़ जो हम कंप्यूटर में रख सकें और उस पर हमारा कंप्यूटर डिफरेंट चीज़ें कर सके, हम उसे डेटा कहते हैं. फिर उसमें हमारी तस्वीरें, वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, जो भी हमारे सारी ये चीज़ें हैं ये हमारे डेटा में आ जाती हैं. टर्न द पेज स्टूडेंट्स. Number 2, information. When you work on data you get some output from the computer. This output is called information. A fact that you want to put into the computer in the form of data is also called information. We can say that information becomes data after processing. अब हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है जब हम अपने डेटा पर काम करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है. हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम डेटा उसमें कंप्यूटर में डालते हैं फिर जो हमारा स्क्रीन पर ज़ाहिर होता है वो इन्फॉर्मेशन होती है. नंबर 3, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर. कंप्यूटर इस्तेमाल करने के फ़ायदे. There are many advantages of working on computer. Some of them are listed below. अब हमारे कंप्यूटर यूज़ करने के बहुत से फ़ायदे हैं, उनमें से कुछ नीचे लिखे गए हैं. Number 1, computer work is speedier than human beings. You can easily do once a week's work in a day. हमारा जो कंप्यूटर है वो इंसानों से जल्दी काम करता है, तो हमारा जो एक हफ्ते का काम होता है हम एक दिन में भी कर सकते हैं. Number 2, computer help us complete our work without mistakes or errors. कंप्यूटर में हम जो काम करते हैं वो गलतियाँ नहीं करता. Number 3, computers have become children's learning tools. Instead of using homemade flashcards, they now learn through computer games. अब जो बच्चे होते हैं वो कंप्यूटर की गेम्स के थ्रू भी हम उन्हें पढ़ा सकते हैं. पहले के दौर में हम उन्हें कार्ड्स के थ्रू पढ़ाते थे जो हम अपने घर में बनाते थे या बाहर से लाते थे. Number 4, द कंप्यूटर इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. कंप्यूटर के थ्रू हम अपना एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं. Number 5, computers have taken the place of board games and pop-up books. अब जो कंप्यूटर्स हैं उन्होंने बोर्ड गेम्स और बुक्स की जगह ले ली है. Number 6, computer literacy is becoming a huge job qualifications, hence it is a great source of earning. अब कंप्यूटर की तालीम जो है वो जॉब हम जब लेने जाते हैं तो पहली डिमांड ही वो ये कहते हैं कि आपको कंप्यूटर आता हो चलाना या कंप्यूटर पर काम करना आता हो. ये हमारे कमाने का बहुत ही बड़ा ज़रिया है. 7, one can write more effectively by means of computer. There are tools like spelling and grammar checker, thesaurus and dictionary installed on the computer. अब जैसे कि एक इंसान जो है वो अब उसमें खूबसूरती से लिख सकता है, उसमें ग्रामर चेकर्स भी होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक एरर्स भी होते हैं ताकि हम कोई गलती ना कर सकें. Number 7,
Almost all institutes, banks, hospitals, organizations, etc. manage and record their data and documents through the computers. अब जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक्स, हॉस्पिटल्स और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो हैं वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना डेटा उसमें अंदर रख सकें. नंबर 9, कंप्यूटर सेव द स्पेस रिक्वायर्ड टू पाइल्स ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स. अब हमारे कंप्यूटर जब नहीं होता था तो हम फाइल्स वगैरह जो हैं आउटपुट में होती थी हमारी बहुत सारी जगह हमारी लेती थी. अब कंप्यूटर के आने से हमारी वो जगह भी बच जाती है. नंबर 10, इट इज़ इवन पॉसिबल टू सेल एंड परचेज थिंग्स फ्रॉम योर होम यूजिंग द इंटरनेट ऑन कंप्यूटर्स. अब ये भी है हमारा पॉसिबल है कि हम कोई भी चीज़ ख़रीद और बेच सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू. You can send and receive data, share information, send application or a message in blinking of an eye through email. You can even chat with others like you do on the phone. अब हम कंप्यूटर के थ्रू कोई भी डेटा भेज सकते हैं या हासिल कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, कुछ भी हम अपनी बातें कर सकते हैं जैसे हम मोबाइल पर करते हैं. टर्न द पेज स्टूडेंट्स. नंबर 12, देयर इज़ अ फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग इन मैनी फील्ड. अब हमारी बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं बहुत सारी फील्ड्स में वो हमारे कंप्यूटर पर होती हैं. दीज आर जस्ट अ फ्यू एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स, देयर आर मैनी मोर स्टिल. अब हमारे जो हैं ये कुछ ही फ़ायदे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे कंप्यूटर्स के. नंबर 2, द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के हिस्से. A computer consists of two parts, the software and the hardware. अब हमारा जो कंप्यूटर है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर. नंबर 1, हार्डवेयर. हार्डवेयर इज़ द फिजिकल टचेबल मटेरियल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. दे आर द इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस. हार्डवेयर इंक्लूड्स माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, CD, DVD, ROM, flash drive, RAM and motherboard. The devices attached to the system such as monitor, mouse, keyboard, printer, digital cameras and speakers, microphone are also included in the list of the hardware parts. Hardware devices function according to the commands provided by the software applications. अब हमारा जो हार्डवेयर हिस्सा होता है वो ज़्यादातर ये होता है जिसे हम हाथ लगा सकें, वो इलेक्ट्रॉनिकल होता है, वो बिजली पर चलता है. उसमें हमारे ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है. टर्न द पेज स्टूडेंट्स. The chassis in which these things are contained and the electric circuitry is also hardware. अब जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं आती हैं और जिसमें हमारा सर्किट होता है वो भी हमारा हार्डवेयर होता है. नंबर B, सॉफ्टवेयर. Software is that part of computer which you cannot touch. There are the programs and applications that run on a computer. Hardware is useless metal and silicon parts. Without software, this enables people to perform different tasks on a computer. A good example for an easy understanding of hardware software definition is a music disc. The actually compact disc is the hardware, while the song and music on the disc are the software parts. Hardware components can be divided into the following categories: system unit, input devices, number 3 output devices, number 4 storage devices. अब जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारी ऐसी डिवाइस और ऐसी चीज़ें, ऐसा हिस्सा है कंप्यूटर का जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते, और ये कुछ प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर पर चलती हैं और कंप्यूटर को चलाती हैं. और जो हमारे दूसरे बाहर वाले हिस्से होते हैं वो तो सिर्फ खाली डब्बे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हमारे सॉफ्टवेयर के बगैर. ये हमारे कंप्यूटर को काम करने के लिए परमिशन देता है. अब हमारा जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझने का आसान तरीका ये है. एक म्यूज़िक डिस्क, हमारी जो म्यूज़िक डिस्क होती है वो हमारा हार्डवेयर होता है, और उसके अंदर जो हमारा सॉन्ग्स हो गए या म्यूज़िक हो गई वो हमारा सॉफ्टवेयर होगा. तो अगर सॉफ्टवेयर उसमें नहीं होगा तो हमारा हार्डवेयर हमारे किसी काम का नहीं है. हमारा हार्डवेयर जो
कंपोनेंट्स हो गए वो इन 4 में डिवाइड हो जाते हैं। पहला है सिस्टम यूनिट, दूसरा इनपुट डिवाइसेस, तीसरा आउटपुट डिवाइसेस, चौथा स्टोरेज डिवाइसेस। नाउ वी स्टडी इन डिटेल अबाउट दीज पार्ट्स ऑफ द हार्डवेयर। अब हम इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सिस्टम यूनिट। System unit is box-like case that contains computers, electronic components. The monitor, keyboard, mouse and other devices are not a part of the system unit. It includes the following. Number 1, motherboard or system board. Number 2, processor or microprocessor. Number 3, memory, RAM. Number 4, expansion slots and IO cards. अब जो हमारे सिस्टम यूनिट है वो एक बॉक्स की तरह होती है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह जो दूसरी डिवाइसेस हैं वो इस सिस्टम यूनिट में नहीं आती। सिस्टम यूनिट में आती हैं मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और स्लॉट्स। नंबर 1, मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड इन सिस्टम यूनिट. अडेप्टर, कार्ड्स, प्रोसेसर चिप्स एंड मेमोरी चिप्स ऑल आर फिक्स्ड ऑन इट. अब जो हमारा मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड हो गया वो हमारा मेन सर्किट बोर्ड है सिस्टम यूनिट का, जिसमें हमारे चिप्स और कार्ड्स, मेमोरी चिप्स वगैरह हमारे उसमें फिक्स होते हैं. नंबर 2, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर. समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. This is the brain of the computer, hence the most important part of it. It has 2 components, the arithmetic logic unit and the control unit. The processor reads an instruction from memory, then it interprets instruction which is coded. After that, processor reads the data for execution of instructions. Processor also performs logical or arithmetic operations on data if necessary. Then it writes the data to give us the results. अब ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारे कंप्यूटर का दिमाग है, या ऐसा कह दें कि हमारे कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट. जो प्रोसेसर होता है वो मेमोरी में से इंस्ट्रक्शंस पढ़कर उससे कोड करता है. फिर जो दूसरा सारा हमारा डेटा का इंस्ट्रक्शन होता है वो उसे फॉलो करके उसे बाहर निकालता है और उस पर ये सारे एक्शंस जो हैं वो ऑपरेशंस वो करके उसका हमें रिज़ल्ट देता है. Hertz table. Hertz is the unit that describes the processor's speed. The more GH has that a computer has, the faster it runs. These days we have microprocessor of the following speeds. अब जो हर्ट्ज है वो एक यूनिट है जो हमारे प्रोसेसर के स्पीड को डिफ़ाइन करता है. जितनी ज़्यादा GHz होंगी कंप्यूटर की उतना ये ज़्यादा तेज़ काम करेगा. आजकल के दिनों में माइक्रो प्रोसेसर की ये स्पीड्स होती हैं 1000 Hz इक्वल्स टू 1 kHz. हमारे जो 1000 Hz हैं वो 1 kHz के बराबर होती हैं. हमारी 1000 kHz जो होती हैं वो mHz के बराबर होती हैं. एक 1000 mHz इक्वल्स टू 1 GHz. अब हमारी जो 1000 mHz हैं वो हमारी 1 GHz गीगाहर्ट्ज़ के बराबर हैं. नंबर 3, मेमोरी रैम. These are electronic components that store instructions, data and results. This is in the form of one or more chips on a small circuit board on the motherboard. Memory slots on motherboard holds memory modules. The RAM chips have various capacities. अब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें हमारे डेटा और रिज़ल्ट जो हैं, डेटा रिज़ल्ट इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हैं इस पर हमारे स्टोर होते हैं. और ये छोटी सी चिप्स के मतलब उसमें होती हैं जो मदरबोर्ड पर होती हैं. अब मेमोरी स्लॉट्स जो होते हैं वो होते हैं उनमें हमारे मेमोरी मॉड्यूल्स जो हैं मदरबोर्ड रखता है अपने अंदर. अब जो रैम चिप्स होती हैं उनकी डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 1 GB, 2 GB and 4 GB. When the computer is off, RAM is empty. When it is on, RAM is capable of receiving and holding a copy of the software
instructions and data necessary for processing. In short, RAM is temporary memory. It allows you to work on any application or software. You must save your work for later use in some other storage device. Otherwise, you lose the whole work or a part of it you have done. RAM stands for random access memory. अब जब हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है तो हमारा रैम जो है वो खाली होता है। जब ऑन होता है हमारा कंप्यूटर तो रैम को जो है वो सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाने में आसानी होती है। अगर हम एक आम ज़ुबान में कहें तो हमारा जो रैम होता है वो मतलब एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, मतलब आर्जी तौर पर हमारा होता है कि हम किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो वो हमारे सेव हो जाए, बाद में हमें उसे किसी और जगह पर सेव करना होता है, वरना जो भी हमने सारा काम किया है वो हमारा गुम जाएगा। और रैम जो है उसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। Number 4, expansion slots and I/O cards. An opening in a computer where a circuit board can be inserted to add new capabilities to the computer is called an expansion slot. Nearly all personal computers except portable contains expansion slots for adding more memory, graphics capabilities and support for special devices. The boards inserted into the expansion slots are called cards, adds in and adds on. Here are some detail about them. अब जो हमारे एक्सपेंशन ये एक मतलब खुली हुई जगह होती है जहाँ पर हम नए कार्ड्स वगैरह जो हैं वो हमारे एक्सपेंशन स्लॉट्स में डाल सकें। ये सब तकरीबन सभी पर्सनल कंप्यूटर्स में होता है सिवाय पोर्टेबल वालों के। ये इसलिए होते हैं ताकि हम ज़्यादा मेमोरी डाल सकें या कुछ स्पेशल डिवाइसेस जो हैं वो हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकें। इन बोर्ड्स में एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, जिन कुछ होते हैं उसमें हम डालते हैं, उन्हें कार्ड्स कहते हैं, या एड इन या एड्स ऑन। अब इनके बारे में कुछ जो हैं वो डिटेल्ड हैं। नंबर 1, VGA. It is short for Video Graphics Array. This card provides the facility to watch pictures and videos clearly. A video card connects to the motherboard and generates output images to display. Video card include a processing unit, memory, a cooling mechanism and connections to display device. अब जो हमारा VGA होता है वो वीडियो ग्राफिक एरे का शॉर्ट फॉर्म है और ये जो हमारे हैं ये इसलिए यूज़ होता है ताकि हम अपने कंप्यूटर पर अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह देख सकें। इसमें जो है आउटपुट में मतलब आउटपुट जो इमेजेस को आउटपुट करने के अच्छे फीचर्स होते हैं जिससे हमें अपनी पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो अच्छे से दिखाई देती हैं। B, sound card. Sound card enables a computer to process and output sound. Sound cards are necessary for all DVD-ROMs. They have become commonplace on modern personal computers. Sound cards enable the computer to output sound through speakers connected to the board to record sound input from a microphone connected to the computer and process on sound on a disk. अब जो हमारा साउंड कार्ड है वो हमारा कंप्यूटर में इस वजह से यूज़ होता है ताकि कंप्यूटर पर जो हमारे वॉइस हैं वो उसे प्रोसेस कर सके और उसे बाहर सुनाई दे। अब जो हमारा साउंड कार्ड होता है वो सभी DVD वगैरह पर मौजूद होता है। ये इसलिए यूज़ होता है ताकि हमारा जो वॉइस होता है वो माइक्रोफोन के थ्रू हमारा जाता है तो उससे कंप्यूटर में स्टोर हो और फिर स्पीकर्स के थ्रू वो सुनाई दे। Come on, next page students. Number C, fax modem. A fax modem card is a communication device. It enables you transmit and receive electronic documents and faxes to a fax machine or another fax modem. Fax modems can be either internal or external. Internal fax modems are often called fax boards. A modem is also used to work through the internet. अब जो हमारा फैक्स मॉडेम है वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो फैक्स मशीन को भेजती है फैक्सेस के शेप में
अब ये जो हैं फैक्स मशीन्स वो इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। अब जो इंटरनल फैक्स मोडेम्स होते हैं उन्हें फैक्स बोर्ड्स कहते हैं, और जो एक मोडेम होता है और हमारा जो एक्सटर्नल होते हैं वो मोडेम्स होते हैं जो इंटरनेट पर काम करते हैं। नंबर डी, पोर्ट्स। A port is the place on a computer to which you can connect a device. Personal computers have various types of ports. Internally, there are several ports for connecting disk drive, displays, screens and keyboards. Externally, personal computers have ports for connecting modems, printers, mice and other devices. अब ये जो पोर्ट्स होती हैं वो एक जगह होती है जहाँ पर हम कंप्यूटर के साथ दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकें। अब पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं हमारे उनमें डिफरेंट तरह के पोर्ट्स होते हैं। इंटरनली जो होते हैं उनके पोर्ट्स होते हैं जैसे हमारी डिस्क ड्राइव्स, डिस्प्ले, स्क्रीन्स वगैरह जो हैं वो कनेक्ट हो सकें, और एक्सटर्नली जो हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में इस वजह से पोर्ट्स होते हैं ताकि हम प्रिंटर्स वगैरह अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकें। ये जो होते हैं इन्हें हम पोर्ट्स कहते हैं। नंबर 2, input devices. Any device that is used to enter data into computer is called an input device. Computers have their own language. They do not understand instruction in our language. Input devices help us translate the instruction in our language into digital language. In this way, input devices make it possible to convey data, information, instruction, etc. to the computer. अब हमारी जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो हमारे डेटा को कंप्यूटर में इंटर करने की हेल्प करती हैं। अब कंप्यूटर्स की जो होती हैं वो अपनी लैंग्वेज होती है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, तो इनपुट डिवाइसेस हमें वो ट्रांसलेट करने में हेल्प करती हैं और हमारा जो डेटा और इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आसानी से कंप्यूटर समझ सकता है। Input devices are attached to the motherboard through different connection points called port. Now we read about some input devices. अब जो input devices होती हैं वो ports के थ्रू कनेक्ट होती हैं हमारे कंप्यूटर से। आए हम उनके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। Number 1, keyboard. A keyboard is used to interact with the computer. It is main input device. It is manually operated input device for alphanumeric data एंड प्रोवाइडिंग अदर इन्फॉर्मेशन। अब हमारा जो कीबोर्ड होता है वो हमारा मेन इनपुट डिवाइस होती है। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के थ्रू हमारे कंप्यूटर को डेटा पहुंचाता है। कीबोर्ड इज़ अ स्लाइटली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर कीबोर्ड. It has numerous buttons on it that are called keys. A keyboard has following types of keys. अब जो हमारा कीबोर्ड होता है वो टाइपराइटर से थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है और इसमें जो है डिफरेंट तरह के बटन्स होते हैं जिन्हें हम कीज़ कहते हैं। आए उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़. All of the letters and numbers on the keyboard A to Z and 0 to 9. अब जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं वो A to Z और 0 to 9 सारे हमारे लेटर्स जो है वो उसमें होते हैं। Number 2, punctuation keys. All of the keys associated with punctuation such as comma, period, semicolon, brackets, parentheses and so on. Also all the mathematical operators such as the plus sign, minus sign and equal sign. अब जो हमारे पंक्चुएशन साइंस होते हैं वो सारे इसमें पंक्चुएशन कीज़ होती हैं उनमें आ जाते हैं और सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो भी इनमें आ जाते हैं। Special keys. All the other keys on the computer keyboard such as the function keys F1 to F12, control keys, arrow keys, space, caps lock keys, delete key, escape key, enter key, backspace key, alter key, etc. अब जो इसमें स्पेशल कीज़ में दूसरी सारी कीज़ आ जाती हैं जैसे फंक्शन कीज़ हो गई, कंट्रोल कीज़, एरो कीज़, कैप और ये जो दूसरे बटन कीज़ होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। Number B, mouse. A mouse is very important and easy to use input device. It controls the movement of the cursor or pointer on a display screen. You can roll a mouse along a hard flat surface. As you move the mouse, the pointer on the display screen moves in the same direction. Mice contain at least one button and sometimes as many as 3. These buttons have different functions. Some newer mouse also includes a scroll wheel for scrolling through long documents.
अब जो हमारा माउस होता है वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, और बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने के लिए। यह हमारे कर्सर जो हमारे स्क्रीन पर होता है उसे मूव करने में हेल्प करता है। जो ये हमारे सख्त और सीधे सरफेस पर काम आता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एक बटन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 होते हैं। आजकल जो हमारे न्यू माउसेस आ रहे हैं उनमें एक स्क्रॉल बटन भी होता है, ताकि जो हमारे लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हम आसानी से स्क्रॉल कर सकें। Number C, scanner. A scanner reads text or illustrations on a paper and translates the information into a form that computer can use. The whole process is called scanning. अब जो स्कैनर होता है वो हमारे पेपर पर लिखे हुए टेक्स्ट या पिक्चर्स को स्कैन करता है और उसे ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर के फॉर्म में, जिसके हेल्प से हमारा कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है। इस सारे प्रोसेस को हम स्कैनिंग कहते हैं। नंबर डी, माइक्रोफोन. Microphone transmit sound into electrical signals. Generally, microphones are a separate computer components. Some manufacturers are integrating the microphone into computers. Generally, integrated microphones can be found on laptop and some desktop monitors. Integrated microphones are usually a small hole in front of the computer, which when we spoke into will record your voice. अब हमारा जो माइक्रोफोन होता है वो हमारे साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। अब जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो एक अलग डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं, पर आजकल जो है हमारे लैपटॉप्स में या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में हमारे माइक्रोफोन्स बिल्ट इन पाए जाते हैं। हमारे कंप्यूटर में एक छोटा सा होल होता है जिसके पास अगर हम बोलेंगे तो हमारा वॉइस उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। नंबर ई, डिजिटल कैमरा. Cameras stores images on a film strip. This strip is developed and photos are obtained. This process is both expensive and slow, but it is not so with the digital camera. It stores images in digital form which can be downloaded to a computer and be can used to it. अब हमारा जो डिजिटल कैमरा है, हमारे जो पुराने कैमरास होते थे वो एक फिल्म स्ट्रिप पर हमारे फ़ोटोज़ लिखते थे, डालते थे और हम उसे मतलब नेगेटिव से हम उन्हें बनाते थे। ये हमारा बहुत ही स्लो प्रोसेस और बहुत ही महंगा प्रोसेस है। पर आजकल जो हमारे डिजिटल कैमरास होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो बहुत ही तेज़ी से काम करते हैं और उसमें जो होता है हम पिक्चर्स लेते हैं तो हमारी वो डिजिटल फॉर्म में होती हैं जो हमारे कंप्यूटर पर यूज़ हो सकती हैं। आउटपुट डिवाइसेस. The results obtained from a computer after some processing are called output. Output can be meaningful information. It can appear in a variety of forms as numbers, as characters, as pictures, and as printed pages. Output devices are devices that convert the information in a computer into a form that can be understood and used by the people. आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड डिस्प्ले स्क्रीन्स, लाउड स्पीकर्स एंड प्रिंटर्स. अब हमारे जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो हमारे रिज़ल्ट पर कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें शो करती है। अब फिर वो नंबर्स, कैरेक्टर्स, पिक्चर्स या हमारे पेजेस में आ जाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो हमारे कंप्यूटर का जो भी फॉर्म होता है वो से जो भी हमारे कंप्यूटर में चीज़ें यूज़ होती हैं उसे हमारा जो है वो आउटपुट हार्ड फॉर्म में आ जाता है। अब इनमें आउटपुट डिवाइसेस में हमारे डिस्प्ले स्क्रीन, लाउड स्पीकर्स और प्रिंटर्स आ जाते हैं। नंबर ए, मॉनिटर. मॉनिटर इज़ अ टीवी लाइक डिवाइस. इट डिस्प्लेज द रिजल्ट्स ऑफ वर्क ऑन इट्स screen. This screen is display screen. Now LCD monitors are also available in the market for the same purpose. अब जो हमारा मॉनिटर होता है वो हमारे डिस्प्ले करता है, उसमें हम जो भी कंप्यूटर पर एक्शन करते हैं वो हमें डिस्प्ले करता है। इसे डिस्प्ले स्क्रीन भी कहा जाता है और आजकल जो है LCD मॉनिटर्स भी आ गए हैं मार्केट में।
Number B, speakers. Speakers are devices that provide output in the form of sounds. They convert electrical signals into sounds. They enable the user to listen music, speech or any other sound. अब जो स्पीकर्स होते हैं वो ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को हमारे साउंड में कन्वर्ट करती हैं ताकि यूज़र जो है हमारे साउंड को सुन सके. C, printer. A printer provides output in the form of text or illustrations on paper. There are many different types of printers, but the most common of them are laser printers and inkjet printers. An output by a printer is called the hard copy. Now the most modern type of printers is 3D printer. We'll study about it in the next classes. अब जो हमारा प्रिंटर होता है वो हमें आउटपुट देता है जो हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं या पे पेपर्स पर डिफरेंट पिक्चर्स के टाइप में. हमारे प्रिंटर्स के बहुत सारे किस्म होते हैं. उनमें से जो ज़्यादा कॉमन है वो लेज़र प्रिंटर्स और इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं. अब ये जो होते हैं ये प्रिंटर्स की जो कॉपी होती प्रिंटर का जो हमारा फॉर्म होता है वो हार्ड कॉपी होता है. अब हमारा जो आजकल नया जो टाइप हो गया प्रिंटर का वो है 3D प्रिंटर. इसके बारे में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. Number 4, storage device. A storage device is a hardware component designed to store data and programs. There are two types of storage devices used in computers, a primary storage and a secondary storage media. A primary storage media stores information and data for a short period of time. This storage medium is called RAM. A secondary storage media saves data after it has been saved by the primary storage media. It stores data for a long time. The data remains stored unless deleted. Secondary storage devices are the hard disk drives, CD, DVD, flash drive and etc. Let's study in detail about these devices. अब जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो हमारे डिज़ाइन कुछ ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो हमारे चीज़ें या सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो हैं अपने अंदर स्टोर करती हैं. इनके दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज मीडिया हो गया और एक दूसरा सेकेंडरी हो गया. अब जो हमारा प्राइमरी स्टोरेज मीडिया हो गया वो कुछ ही अरसे के लिए रख सकता है जिसका जैसे रैम हो गया हमारा. और जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होता है वो तब तक वहाँ पर सेव होता है जब तक हम उसे डिलीट नहीं कर देते और ये लंबे अरसे तक होता है. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव वगैरह आ जाते हैं. आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. A hard disk drive, HDD, also called hard disk or hard drive. Hard disks these days are sealed units. They have magnetic plates that stores data. These plates are called platters. Hard disk can be divided into two categories: the internal hard disk drive and the external hard disk drive. The internal HDD is fixed on the motherboard. This is the main storage device on your computer. It stores all your data like files and folders, documents, music and video, and the operating system and computer programs. When the internal device does not have any free space, external hard disk drives are used to store more data. They can be connected to a computer by USB. Several additional hard drives can be connected to each at the same time. Hard disks available in the market have a memory range from 20 GB to 1000 GB. However, there are disks with a storage capacity of even 2 TB terabytes, which is equal to 2000 GB. हमारी जो हार्ड ड्राइव होती है वो आजकल जो है वो बंद आती हैं. उनमें प्लेट्स होती हैं जो डेटा स्टोर करती हैं. इनमें जो प्लेट्स होती हैं हम उन्हें प्लेटर्स कहते हैं. अब हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती हैं वो दो कैटेगरीज में आ जाती हैं, एक इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरी एक्सटर्नल.
जो हमारी इंटरनल होती हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हमारे मदरबोर्ड पर फिक्स होती हैं, जो हमारे कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस होती हैं, या हमारा सारा डेटा जैसे फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं हमारे कंप्यूटर वो हमारा सेव करती हैं। जब हमारे कंप्यूटर पर सारा स्पेस ख़त्म हो जाता है तो हम इसकी दूसरी हम यूज़ करते हैं जो हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। अब जो हमारे USB के थ्रू कंप्यूटर में कनेक्ट होती है और हमारा कंप्यूटर 2 से 3 एक साथ एक टाइम पर यूज़ कर सकता है। जो हमारे मार्केट में हार्ड डिस्क होती हैं उनकी मेमोरी रेंज जो होती है वो 20 GB से 1000 GB तक आ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 TB तक आ जाती है, जो हमारा 2000 GB के बराबर होती है। नंबर B इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क CD। A CD-ROM is a ROM, write once and read many storage medium. CDs are composed of a polycarbonate plastic substrate, a thin reflective metal coating and a protective outer coating. The data once stored on them can be altered but can be read, viewed and used again and again. CDs vary in their data storage capacity: 74 minutes 650 MB, 80 minutes 700 MB 12 cm and 21 minutes 185 MB 8 cm डिस्क आर अवेलेबल इन द मार्केट। यू कैन रन CD इन अ CD-ROM। अब हमारी जो CD है वो उसमें हम एक बार लिख लेंगे तो हम उसे दोबारा पढ़ सकते हैं, ऐसा उसमें एक सिस्टम हो गया है। हमारी जो CDs होती हैं वो प्लास्टिक सबस्ट्रेट से बनी हुई होती है, जो हमारी हल्की सी मेटल कोटिंग और प्रोटेक्टिव जो कोटिंग होती है उससे बनी हुई होती है। अब उसमें जो डेटा होता है वो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, पर उसे हम बार बार देख सकते हैं। इसकी जो मेमोरी रेंजेस होती हैं वो 650 MB, 700 MB या 185 MB जो होती हैं उसकी डिस्क जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। हम जो है CD वो CD-ROM पर चलाते हैं। नंबर C, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क DVD. It is also a worm, work once, read many storage medium. A DVD is somewhat similar to a CD composition. It can be store data more than a CD can. A DVD has a storage capacity of usually 4.1 GB. These days DVDs are one layer. There is also an 8.54 GB dual layer version called DVD-RDL. You can run a DVD-ROM in a DVD-ROM drive. A DVD-ROM can play CD-ROM as well. अब ये भी जो है हमारी CD की तरह ही हो गई। एक बार हम इसमें जो डेटा डाल देते हैं वो दोबारा हम एडिट नहीं कर सकते, और ये जो है बनावट भी इसकी CD की तरह ही होती है, एक लेयर की होती है, पर इसमें हमारी उसके कैपेसिटी जो होती है वो 4.1 GB होती है। पर आजकल जैसे इसकी डुअल लेयर भी आती है तो उसकी जो स्पेस होती है 8.54 GB आती है, जिसे हम DVD-RDL कहते हैं। हम जो DVD है वो DVD-ROM पर चला सकते हैं, और जो हमारी DVD-ROM है वो CD-ROM को भी आराम से चला लेता है। मैग्नेटिक टेप. Magnetic tape has been in use for more than 50 years. It is in recent years packaged in cartridge cassettes. The average amount of storage is 5 MB to 140 MB for every standard length reel. 2400 feet. The data on a magnetic tape is read by a tape drive. अब हमारी जो टेप्स होती थी वो 50 साल से ज़्यादा से यूज़ होती जा रही हैं। ये पहले कैसेट्स में आती थी। इनकी जो स्टोरेज होती है वो 5 MB से 140 MB तक होती है, जिसकी जो हमारा उसका लेंथ रील होता था वो 2400 फीट का होता था। अब ये जो मैग्नेटिक टेप है ये हमारे टेप ड्राइव पर चलती थी। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। Flash drive. The flash memory storage device is portable and rewritable memory. It is very small in size but can store large amounts of data. In most cases, more than CDs or DVDs, it can be carried around on a key chain. This type of a secondary storage device has become incredibly popular. Data can be easily read
read using the USB Universal Serial Bus Interface. This interface now comes standard with most of the computers. The driver easily available in the market usually have a storage capacity ranging from 8 GB, 16 GB, 32 GB to 64 GB. The highest storage of flash drive is 2 TB. अब जो हमारी फ्लैश ड्राइव मेमोरी होती है वो हमारे पोर्टेबल होती है और रीराइटेबल होती है, मतलब हम कहीं भी उसे लगा सकते हैं। ये बहुत ही छोटी होती है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट की फाइल्स वगैरह हम इसमें रख सकते हैं, और ये हमारी CD DVD से ज़्यादा हो गई है। ये हम एक किचन के थ्रू भी हम कहीं भी लेकर आ जा सकते हैं। ये इस टाइप का सेकेंडरी डिवाइस है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ है। डेटा इसमें आसानी से आ जाता है और हम USB के थ्रू इसे पढ़ भी सकते हैं। अब इसके जो है ये इंटरफेस जो है वो हर कंप्यूटर में आ जाता है और इसके ड्राइवर्स भी आसानी से अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और अब इसकी स्टोरेज की बात की जाए तो इसकी स्टोरेज 8 GB, 16 GB, 32 GB और 64 GB में आ जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इसकी स्टोरेज होती है वो 2 TB तक आ जाती है। 3. How a computer works. A computer works through the following stages. अब हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है? हमारा कंप्यूटर नीचे दिए गए प्रोसेस के थ्रू काम करता है। Number 1, input operation. When you turn your computer on, it provides you an access to different programs. You work in these programs. In order to do the desired tasks, you provide some instructions to the computer. These instructions are usually provided from the keyboard, but there may be other forms of input as well. You may put instructions in the form of data from another computer or another device also. This process of providing instructions to the computer is called input. अब हमारा जो कंप्यूटर हम जब ऑन करते हैं तो हमारे वो बहुत सारे प्रोग्राम्स देता है जिन पर हम काम कर सकते हैं। इन पर हम अपने पसंदीदा जो भी हमारा काम हो वो कर सकते हैं। फिर हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो हमारे कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। हम उसे किसी और इनपुट डिवाइस के थ्रू भी हम दे सकते हैं। हम ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डेटा के फॉर्म भी किसी दूसरे कंप्यूटर या दूसरी डिवाइस से दे सकते हैं। ये जो हमारा प्रोसेस होता है इंस्ट्रक्शन देने का, इसे हम इनपुट कहते हैं। Number 2, processing operations. This happen in the processor. The processor works in the following 4 stages called machine cycle. अब ये जो हमारा प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है ये हमारे प्रोसेसर में होता है और प्रोसेसर इन 4 हमारे साइकिल में देता है जो हमारे नीचे ये लिखे हुए हैं। Number 1, fetch. The processor obtain program instructions और data from memory. अब ये जो है प्रोसेसर हमारा प्रोग्राम के अंदर जो हमारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो मेमोरी से लाता है। Number 2, decode. The control unit of the processor translate instruction into commands. Then these are then transmitted to the arithmetic logic unit. अब फिर हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है प्रोसेसर का वो इन सबको इंस्ट्रक्शंस को हमारे कमांड्स में ट्रांसलेट करता है, फिर वो ALU में ट्रांसमिट हो जाते हैं। एग्जीक्यूट देन the ALU then carries out the commands. फिर जो हमारा ALU होता है वो कमांड्स को बाहर लाता है। Number 4, store. The ALU writes the executed result to memory. अब फिर हमारा जो ALU होता है वो हमारा जो भी रिज़ल्ट होता है वो मेमोरी में एग्जीक्यूट करता है। Number 3, processing operation. The storage operation allows you to store your data in a certain folder on the hard disk. फिर इस प्रोसेसिंग ऑपरेशन के बाद हमारा जो डेटा होता है वो हम किसी भी फोल्डर में हार्ड डिस्क पर सेव कर सकते हैं। Number 4, output operation. In this stage, you get the results in your desired form. It may be in the form of a print on paper, something stored in any form of storage device, etc. अब ये जो इस स्टेज पर जो हमारा रिज़ल्ट होता है वो हमें अपने जो भी हमारा फॉर्म होता है मनचाहा उसमें मिल जाता है। फिर वो हमारा जो है पेपर के प्रिंट में हो या फिर हमारी किसी भी स्टोरेज में किसी भी फॉर्म में हमारे स्टोरेज डिवाइस पर मौजूद हो।
पहले हम इनपुट करते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर वो आउटपुट देता है। प्रोसेस में हमारे स्टोरेज जो है वो आती जाती रहती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस रीडिंग। सो लेट्स सॉल्व अवर एक्सरसाइज। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। Let's solve our exercise. So here it is our question number 1. Define a computer. Answer is a computer is an electronic machine which stores instructions provided to it, responds to the new instruction that is given and stores data. हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे अपने कॉपी में इसका आंसर। आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन 2 है राइट एट लीस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर। आंसर इज 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर आर नंबर 1 computer work speedier than human beings. You can easily do a week's work in a day. Number 2 computer helps us complete our work without mistakes or errors. Number 3 the computer is a great source of entertainment. यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अपना लिखेंगे आंसर अपने फेयर कॉपी में। Question number 3 is how is hardware different from the software? Answer is hardware is the physical touchable material component of the computer. They are the electronic, magnetic, mechanical and electric devices, while software is the part of computer which you cannot touch. They are the programs and applications that run on a computer system. यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ये अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ in how many categories can you divide hardware components of the computer? Name them. अब ये जो आंसर है या hardware components can be divided into the following categories: A system unit, B input devices, C output devices, D storage devices. हम इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे। नंबर 5 क्वेश्चन इज़ how does the processor performs its function? Answer is the processor has two components, the arithmetic logic unit and the control unit. It reads an instruction from memory, then it interprets the instruction which is coded. After the processor reads the data for the execution of instructions. यहाँ तक हम लिखेंगे इसके लाइन नंबर 3 तक। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द आउटपुट डिवाइसेस यू हैव स्टडीड इन द लेसन। इसका आंसर है नेम ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, स्पीकर्स एंड प्रिंटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ये आंसर अपना पूरा लिखेंगे। नंबर 7 इज़ राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग and the answer is A keyboard. A keyboard is used to interact with the computer. It is main input device. It is a manually operated input device for alphanumeric and providing other information. Keyboard is a slightly modified form of traditional typewriter keyboard. It has numerous buttons on it that are called keys. A keyboard has following types of keys. अब हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर इनके सिर्फ नाम लिखेंगे। हम इनकी जो डेफिनेशन है हम ये नहीं लिखेंगे। नंबर बी इज़ प्रिंटर। A printer prints text or illustrations on paper. There are many different types of printers, but the most common of them are laser printers and inkjet printers. और ये इसके आगे वाली लाइन हम कट कर देंगे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। C is digital camera. Camera stores images on a film strip. This film strips is developed and photos are obtained. पहले हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर ये नीचे वाली लाइन बट से स्टार्ट करेंगे। बट इट इज़ नॉट सो विद द डिजिटल कैमरा. इट स्टोर्स इमेजेस इन
digital form as can be downloaded to a computer system and can be used in it। अब हम वहाँ से बट से लेकर यहाँ तक इसका लिखेंगे। अब डी है CD DVD। CD and DVD are storage media। CDs are composed of a polycarbonate plastic substrate, a thin reflective metal coating and a protective outer coating। CDs vary in their data storage capacity, यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक लिख कर फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लाइन से। A DVD is somewhat similar to a CD in composition. It can store data more than a CD can. A DVD has a storage capacity of usually 4.1 GB। अब पहले हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर जहाँ पर ये एंड होगा वहाँ पर फुल स्टॉप लगाकर उसकी नीचे वाली लाइन से DVD से लिखना स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक ये लिखा जाए। फिर हमारा है ई हार्ड डिस्क, ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द हार्ड डिस्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव HDD और हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क। These days are a sealed unit. They have magnetic plates that stores data. These plates are called platers। Hard disk can be divided into two categories, the internal hard disk drive and the external hard disk drive। पहले ये यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर हम आएंगे इसकी इस वाले लाइन पर। Hard disk available in the market have a memory range from 20 GB to 1000 GB। However, there are hard disks with a storage capacity of even 2 TB terabytes which is equal to 2000 GB। हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। फिर हमारा है F फ्लैश ड्राइव। Flash drive is portable and rewritable drive। It is very small in size but can store large amount of data in most cases more than CDs और DVDs। हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे इसका। फिर हमारा आ जाता है मॉनिटर। The monitor is a TV-like box। It displays the results of your work on its screen। This screen is called the display screen। Now LCD monitors are also available in the market for same purpose। यहाँ से यहाँ तक ये हम अपनी कॉपी में उतारेंगे। हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। हमारी अब है ये सेकंड एक्सरसाइज, सर्कल द करेक्ट आंसर्स। here we start। Number 1, a computer stores the data in number C, memory। Number 2, what type of device is a hard disk? D, storage। Third, which of the following devices is used for the internet? C, modem। 4, F1, F2, F3 ... keys are called D, function keys। 5, an output through a printer is called C, hard copy। यहाँ पर ये सॉल्व किए गए हैं, पर मैंने आपके आसानी के लिए ये बुक में आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। आप ऐसे ही अपने कॉपी पर उतार कर इसे ऐसे ही लिखेंगे। Number 3 exercise is fill in the blanks with suitable words। Number 1 is a computer can perform different processes on data। Number 2, hardware devices function according to provided by software applications command। Number 3, a dash is the place on computer to which you can connect a device। इसमें हम लिखेंगे port। Number 4, integrated microphones are usually in front of the computer, a small hole in front of the computer। Number 5, the process of providing instructions to the computer is called input। हमारी ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। ये भी आप अपने फेयर कॉपी पर ऐसे ही उतारेंगे जैसे बुक में लिखी हुई हैं। हेयर इज़ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच कॉलम A विद कॉलम B। अब हम अपनी कॉपी में पहले कॉलम्स बनाएंगे, फिर ऐसे ही लिखेंगे जैसे इनमें लिखा हुआ है, फिर हम इन्हें मैच करेंगे जिनसे ये एक दूसरे से मैच कर सकें।
सो आवर फर्स्ट इज़ इनपुट, ये हम करेंगे C के साथ स्कैनर. Number 2, output, it will be connected to D, printer. Number 3, storage, it will be linked with A, CD, DVD. Number 4, processing, it will be connected with E, CPU. 5, communication, ये हमारा B के